Good morning, students. How are you all? I hope you all are enjoying and safe at home. So today we are going to start with very interesting poem, Olympic Granny. Let's start with introduction. Students, I think you know about Olympic Games. It held after 4 years. I hope you all have heard about it. Okay, let's start. The Olympic Games are an international sports festival that began in ancient Greece around 776 BC. तो हमारे जो ओलंपिक गेम्स हैं वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है हमारा, जो फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था हमारा 776 BC. और ये कहाँ पे फर्स्ट हेल्ड हुआ था? इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन एंशियंट ग्रीस. ओके, यू नो द सिंबल ऑफ ओलंपिक्स. देयर आर 5 rings joined to each other. One is of blue color, black, red, yellow and green. I hope you have already seen. Okay. The symbol was originally created in 1913 by Coubertin. Coubertin is the name of a person. The rings represent the 5 continents. There are 5 rings and they represent 5 continents: Europe, Asia, Africa, the Americas and Oceania. Okay, let's start. The original Greek games were staged every 4th year for several hundred years until they were abolished in the early Christian era. कि जब एक बार जो था ये स्टार्ट हो चुके थे लेकिन उसके बाद ये बंद हो गए ड्यू टू सम रीजंस. बट ये जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है ये एवरी 4th ईयर ही मतलब ये स्टार्ट होते हैं. और abolished मीन फिनिश्ड, और ये मतलब जब तक ये फिनिश नहीं हुए थे ये एवरी 4th ईयर ही हेल्ड होते थे. यानी एक टाइम ऐसा था ड्यू टू सम रीजंस इट हैज़ बीन स्टॉप्ड. द रिवाइवल टुक प्लेस इन 1896 and since then they have been organized every 4th year except during World War I and World War II. Revival means they started again. When they started again? 1896. And since then they have been organized every 4th year except during World War I and World War II. यानी जब World War I और 2 हुई तब ये हेल्ड नहीं हुए, अदरवाइज एवरी 4th ईयर दे हेल्ड. Olympic games, like almost all Greek games, were an integral part of a religious festival. Integral means essential, necessary. यानी ये ग्रीक में एक असेंशियल पार्ट था कि एज अ रिलीजियस फेस्टिवल इसको मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था कि ये मतलब होना ज़रूरी ही है. They were held in honor of Zeus, the Greek god of the sky and weather. ये किसके ऑनर में स्टार्ट किया गया था? ग्रीक गॉड जो कि स्काई और वेदर के गॉड थे एट ओलंपिया. अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड द गेम्स वर फाउंडेड बाय हेराक्लिस सन ऑफ ज्यूस एंड एलेक्मेने. अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड यानी एक बहुत बड़े आदमी के अकॉर्डिंग ये गेम्स किसने फाउंड की थी? हु फाउंडेड दिस गेम? हेराक्लिस. और हेराक्लिस किसका सन था? ज्यूस एंड एलेक्मेने. द आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल पीपल लेड टू द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स. यानी इसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आइडियाज़ हैं मॉडर्न ओलंपिक्स को क्रिएट करने में. द रीनॉन creator of the modern games was a young French nobleman, Pierre de Coubertin. He was born on 1863 and died on 1937. 13 countries competed at the Athens Games in 1896 and 9 sports were on the agenda. आजकल तो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं ओलंपिक्स में, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी देयर वर ओनली 9 sports. Okay students, let's start the poem now.
ग्रैनी एक्सेल्स इन एवरी स्पोर्ट डिस्पाइट हर ओल्ड एज, कि ज़्यादा एज होने के बाद भी ग्रैनी जो थी वो हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती थी, अपनी एक्सीलेंस शो करती थी. रीड द पोम टू नो मोर अबाउट हर. Okay students, you must have seen athletes. Yes, everybody has seen. आपको भी अच्छा लगता है एथलीट बनना. स्पोर्ट्स मीट में मैंने देखा है कि सब लोग विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं. So athletes are so strong and they are physically fit. They know very well how to play games properly. They go and compete. Here we are talking about grandma. She is going to participate in Olympics. Not only this, she has many other qualities. Okay, let's start. When grandma goes for a gold in the Olympic Games this year, she'll laugh at her competitors and make them quake with fear. Now, the grandma is ready to participate in Olympics this year. She is going to plan everything. By reading this stanza, we come to know that grandma is very confident about her victory in games. जो grandma के competitors हैं, grandma बोल रही है कि मुझे इतना confident है कि जब मैं गोल्ड लूँगी ओलंपिक्स में तो जो मेरे competitors हैं मैं इनके ऊपर हंसूँगी. And make them quake with fear. Here is the meaning of quake, shake. यानी वो डर के मारे shake करने लग जाएंगे. Competitors will feel fear to see the confidence of grandma. She is 99 years old. Oh my God. Look at the age of grandma. 99 years old. But in athletics, she has been blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. 99 ईयर्स के होने के बाद भी ग्रैंडमा जो थी वो हर तरह के जो भी गेम्स एथलेटिक्स में होती हैं वो सब में पार्टिसिपेट कर सकती थी, बिकॉज शी इज़ गुड एट एवरीथिंग. शी हैज़ बीन ब्लेस्ड. बट ट्रबल क्या थी कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा स्पोर्ट प्ले करती है ग्रैंडमा, कि वो सब चीज़ों में ही इतनी अच्छी थी कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन से स्पोर्ट में मैं सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ. शी इज सच एन एस एट आर्चरी. आर्चरी सबको पता है, बो एंड एरो गेम, तीर कमान जिसको बोलते हैं. एस मीन्स गुड एट समथिंग, कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होना, कि आर्चरी में भी ग्रैंडमा बहुत अच्छे हैं. शी इज़ क्वीन ऑफ द केनोए. केनोए इज़ अ पॉइंटेड बोट, तो वो बोटिंग में भी बहुत अच्छे हैं. शी इज़ टफ टू द टॉप एट टाइकवुंडो, और वो टाइकवुंडो खेलने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं. एंड टेबल टेनिस टू. ओ माई गॉड, ग्रैंडमा कितने गेम्स प्ले करती हैं, वो टेबल टेनिस में भी बहुत अच्छे हैं. शी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड. शी ट्रॉम्प्स द ट्रैम्पोलिन. एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग शी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन. She is superb in playing diving board and she is excellent in playing trampoline. Which game is trampoline? A piece of equipment used for doing jumps in the air. And can you imagine 99 years old lady hold weight? She is even doing her best. She speeds across the swimming pool to slake the summer heat. On BMX and mountain bike, she simply can't be beat. She swims such at the fast rate. And what is the meaning of slake? Satisfy a wish. कि वो समर हीट को भी बीट करने के लिए स्विमिंग पूल की गेम में पार्टिसिपेट करती थी. ऑन BMX, BMX मीन्स बाइसिकल, जो कि माउंटेन राइडिंग के लिए यूज़ होती है. एंड शी सिंपली कांट बी बीट. शी इज़ द हाइएस्ट इन द हाई जंप एंड अ चैम्प एट हैमर थ्रोइंग. और हैमर थ्रो में भी ग्रैंडमा क्या है?
शी इज़ चैम्पियन। मैग्निफिशेंट इन मैराथॉन्स, मैराथॉन्स क्या होती है, जो लॉन्ग रेसेस होती हैं। रिमार्केबल एट रोइंग, रोइंग मीन्स कि उनकी जो भी मतलब विक्ट्री है, जो भी उनका गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग। शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, ओ माई गॉड, शी इज ऑल्सो गुड इन बॉक्सिंग। एट द पोल वॉल्ट शी इज पियरलेस, हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, शी इज पॉजिटिवली फियरलेस। Not only wrestling, she is good at boxing. And when she comes to pole vault, she is peerless. It means कि जब वो pole vault game में आते हैं, pole vault game कौन सी होती है? It is a track and field in which a person uses a long flexible pole and an equipment is used to jump over the bar. कि वो इस गेम में भी ग्रैनी जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो मैचलेस हैं, यानी उनको कोई भी compete नहीं कर सकता। शी हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू प्ले ऑल द गेम्स, कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शी इज़ वेरी रिलैक्स्ड। शी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट। यानी वो बास्केटबॉल में भी अच्छी है, कोर्ट में उनको कोई नहीं हरा सकता बास्केटबॉल कोर्ट में, और उनका मतलब कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता, वो हर गेम में इतनी अच्छी हैं। But what we find astonishing and something of a shocker is how she wins all contests with her wheelchair and walker. It's very surprising. Could you understand this? कि ग्रैनी इतने सारे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, but after that it's very shocking that she play all the games with her wheelchair and her walker. Yes, what an inspirational poem. Granny teaches us a lesson that when we have a strong wish to do something, age doesn't matter. We are blessed with fit and fine body. So we should do all the efforts to achieve our goal. Granny motivate us. So students, भगवान ने हमें इतनी अच्छी फाइन बॉडी दी है, तो हमें भगवान को थैंक्स करके, गॉड को थैंक्स करके अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, और आप भी ऑलराउंडर हो सकते हो ग्रैनी की तरह। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पोम